हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट वर्ल्ड। आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल काइनेटिक्स का जो क्वेश्चन 2018 आईआईटी जाम में आया था। 2018 में जो क्वेश्चन आया था केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन आया था। पहला क्वेश्चन क्या था? देखो बोर्ड पे, देखो पहला क्वेश्चन है द टाइम फॉर 50% completion of a zero order reaction। एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या दे रखा है? 30 मिनट में उस रिएक्शन का 50% कंप्लीट हो जाता है। इसका मीनिंग वही होता है कि टाइम 30 मिनट में द रिएक्शन का 50% 50% कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन में पूछा टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 80% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। 80% कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम चाहिए इन मिनट में? दिस इज ऑल्सो एनएटी टाइप क्वेश्चन। बहुत बार एनएटी टाइप क्वेश्चन ही आया। 2017 में आया था तो क्वेश्चन जो एनएटी टाइप था। इस बार भी 2018 में भी एक एनएटी टाइप क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन ने पूछा है टाइम, व्हाट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 80% completion ऑफ द रिएक्शन। इस क्वेश्चन को हम थियोरेटिकली देखेंगे एंड ऑल्सो इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट कैसे करेंगे? बाय अप्लाइंग ए ट्रिक्स ट्रिक्स को अप्लाई करके उसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। पहले उसको देखते हैं थियोरेटिकली क्या होता, क्या होगा वो। देखो, फॉर एनी रिएक्शन फॉर एनी रिएक्शन टू फाइंड द ऑर्डर मीन्स this is the formula A T 1 minus n is equal to A naught 1 minus n plus n minus 1 Kt. This formula is for kinetics for nth order. For any order के लिए जो काइनेटिक्स का फॉर्मूला है उसको अप्लाई करेंगे तो हमको काइनेटिक्स मिल जाएगा। Because this is the kinetics for nth order. What is here given? So जीरो ऑर्डर के लिए काइनेटिक्स को कैसे याद रखेंगे? बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला। जो जीरो ऑर्डर को याद करने के लिए हम क्या करेंगे? दिस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। तो क्या होगा? जीरो ऑर्डर मीन्स हियर n वैल्यू इज इक्वल टू 0। सो काइनेटिक्स फॉर zero order, sorry, kinetics for zero order reaction is, that is AT. What is AT? AT is the left amount, but after some time the concentration of the reactant, that is A1 minus 0. So what? A1 is equal to A naught, so plus 0 minus 1. 0 minus 1 what? That is minus 1 Kt. So AT is equal to A naught minus Kt. This is the kinetics for zero order reaction. We can find
kinetics for first order, you can find the kinetics of second order. By applying this formula, you can find the kinetics of any order of reaction, any order of reaction. So you are given zero order terms, those is kinetics for zero order reaction. So reaction is completed. 50% reaction is complete. सो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, देखो बोर्ड पे देखो। सो ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए टी फॉर जीरो ड्रॉ। सो व्हाट के टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए टी। So T is equal to A naught minus A T by K. Suppose this is considered T1, this is 1 K1. Means K, what K was here, K is constant. So K, this will changes. Yeah. Similarly T2 क्या होगा, A naught minus A T2 by K. This is T2. So T1 by T2 dividing, this is 1, this is 2, dividing equation 1 by 2, we get A naught minus A T 1 by A naught minus A T by 2. K cancel, K cancel हो जाएगा। So हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा T1 is given initial time for 50% completion, that is 30 minutes is given, 30 minutes. 30 by T2 required value, this is required, is equal to A naught. Initially A naught क्या होता है, we know that is 100%, that is 100, this is 100 minus 80 कितना है, 50% है, 50 by 100 by 50, A naught same 100, what is 80? When time T1, then this difference value is 100 minus 50. When time T2, then this difference value is 100 minus what? 20% completed means, sorry, 80% completed means by 20. 100 minus 50, you get 50%. 100 minus 20, you get what? 80%. Time T1, this value, time 2, this value. So then what value? 30 by T2, 30 by T2, this is 50 by, this is what? 80. So what is the value of T2? So T2 is equal to what? Cross multiplication. Do cross multiplication. You get, I write here T2 value, T2 is equal to 80, T2 is equal to 80 into 30 by 50. 0 0 5 the 1, then 48 minutes. The correct to for 8% completion, 8% complete करने के लिए 48 minutes required. This is the correct answer. This is the correct answer. वो तो था theoretically how can solve this, but मैं पहले बोला था
उसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखो यहाँ पर कैसे होगा। जहां पर भी आप देखेंगे दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, जब दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन हम आप देखेंगे तो क्या करेंगे आप, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, टी एक्स बाई टी वाई, टी एक्स बाई टी वाई इज इक्वल टू एक्स बाई वाई, इसकी डायरेक्ट फॉर्मूला है। By applying this direct formula, you can easily solve this question. कैसे होगा चलो देखते हैं। टी एक्स क्या हुआ है, टी एक्स क्या है, टी एक्स है जो इनिशियल टाइम है, क्या दिया 30 मिनट, जो इनिशियल टाइम दिया है वो है टी एक्स। टी वाई को हम निकालेंगे, टी वाई क्या होगा, एक्स क्या होता है जो इनिशियल अमाउंट है, वाई क्या होता है आफ्टर टाइम जो अमाउंट है। सो क्या होगा यहाँ उसको सॉल्व करें तो जब टी एक्स इज इक्वल टू क्या है 30 मिनट है, एक्स क्या है 50 है, वाई क्या है 80, टी वाई क्या उसको निकालें। सो क्या होगा 30 बाय टी वाई इज इक्वल टू 50 बाय 80। सो टी वाई इम्प्लाइज टी वाई इज इक्वल टू क्या होगा 30 इंटू 80, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 30 इंटू बाई 50, 648। डायरेक्ट भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। वो पहला क्वेश्चन है 2018 का। नेक्स्ट हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या था।